concentrate on the number of 85 commercial SOEs that can pay us dividends and that can be profitable, and some of them are profitable, as I have pointed out. If you look at the numbers, of course, numbers तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that the ones that really matter are power की 20 है, infrastructure की 17 है, mineral, manufacturing, mining, and enterprises की are another 14, and there is further breakdown, but I'm sure my colleagues can give you more information should you need after this press briefing. अब इसमें बहुत credible organizations हैं जो हमने top 10 profit making की list बनाई हुई है. We will be very happy to share that list with you, और उनकी 2020 का डेटा भी हम आपको दे सकते हैं, और टॉप 10 लॉस मेकिंग भी हैं जिनको हम टर्न अराउंड के उस पर करेंगे या प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे. लेट मी फर्स्ट शेयर विथ यू the highlights of the State-Owned Enterprises Governance and Operation Act 2023, which was promulgated on 2nd February 2023. इसके salient features ही मैं आपको सिर्फ बताऊंगी. एक, nomination of independent directors, और मैं आपको अपने experience से बताऊंगी कि once you fix the boards, your job is done, and you give full powers to the board to appoint and make sure. But आपको board अच्छी appoint करनी है, उस पे I will tell you what we are thinking of. और majority of the board members should be independent. That has been the discipline in other jurisdiction. उनका security of tenure होना चाहिए. ये नहीं कि किसी को नाराज़ कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी controversial, उसको निकाल दिया गया कि भाई ये हमारे fit and proper से नहीं आया. There are so many excuses that can be provided. और जो office of the chairperson of the board has to be separate from the CEO. और हमारे यहाँ कुछ companies यहाँ पे थी, particularly the statutory organization, जिसमें CEO और जो chairperson of the board was the same person, and I don't think that's good practice. फिर पेपरा रूल्स की एग्जेम्पशन इनको दी गई है, लेकिन पेपरा रूल्स को फॉलो करना इनिशियली टू गेट द रूल्स प्रॉपर, और उसकी एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेपरा रूल्स हैज़ टू बी डन इन एन इफेक्टिव मैनर, और उसकी फिर कैबिनेट अप्रूवल देता है अगर उसकी ज़रूरत हो कैबिनेट की अप्रूवल की. अपॉइंटमेंट्स ऑफ CEOs इज़ वेरी क्रिटिकल, और उस पर काफ़ी नज़रसानी की जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, और पॉलिसी डायरेक्शंस जो देने हैं उसको बड़ा सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. उसकी अप्रूवल कैबिनेट से चाहिए होगी. सो नो ad hoc interference in these institutions. Let me just talk about briefly the CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance of SOEs, क्योंकि इस वक्त एक जगह में आपको नहीं मिलता ही है ना. You have to, एक तो outdated होता है, takes you long. So also it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs, and it will have the ability to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously, it will compile this data on a semi-annual and annual basis, और ये current हम कोशिश करेंगे कि ये CMU रखे. ज़ाहिर है, the custodians of those of this law is people like Kamran, because they are going to be here even when this government goes away. Caretaker government का period ख़त्म हो जाएगा. हमारा काम ये है कि जो काम अच्छा हुआ है उसको हम आगे लेके चलें, ताकि really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued. जो अच्छे वाले हैं, because we will benefit even in a short time from this. SOEs जो कि that come under the scope of the act will not comply with public sector companies corporate governance rules of SECP, but SECP
is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely partially engaged in strategic functions और essential SOEs जो जहाँ पे private sector service नहीं provide कर सकेगा वहाँ पे we will try to retain this but lift the game financially and operationally उनकी non-strategic SOEs को over the period we should phase out as I see. Obviously, as we move forward, the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. आपको पता है with the health of these SOEs, we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed because these guarantees cost us a lot and we have the limits on guarantees as you know from the IMF program. और public service obligations को हमने ठीक से measure करना है, ठीक से record करना है and we will have public service obligation pay more analytical work done under the rubric of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government. And obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. हमारा ये website पे है policy paper. आप इसको ज़रूर study करें. And obviously Kamar Saab is available for any Q&A moving forward. And I'm here for a little while. But I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2. But I'm going to sit with you, and if there are questions. प्लीज़ ये करेंगे सवाल मैनेज मुख्तसर काइंडली रखिएगा और अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करा दें तो आप राइट से शुरू करते हैं आप बताइए मेहताब हैदर साहब मेरा नाम मेहताब है मैम ये 200 से ज़्यादा SOEs हैं टोटल नंबर और आज से चंद साल पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलरली एक एनुअल रिपोर्ट इसके बारे में जारी करता था जी ये 2020 का एक तो फिगर जो है लेटेस्ट फिगर्स क्यों नहीं अवेलेबल इस पर कब तक काम हो जाएगा और दूसरा ये बताएं कि ये लॉसेस में पिछले 3, 4, 5 साल से ये लॉसेस में वरना पहले ओवरऑल एक एग्रीगेट प्रॉफिट होता था तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो पावर सेक्टर की कंपनीज का तो इसको आप कैसे जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे PIA है और ये पावर सेक्टर की कंपनी ये कब तक आपका प्लान कब तक है और कब तक आपने इनको जो है वो या डिस्पोज ऑफ करना है या इनको टर्न अराउंड करना है जी thank you for this question. I think let's take few more questions and then we come. जो आपने बताया है एक बर्डन है स्टेट गारंटीज का इन SOGs के लिए कोई आपने कैलकुलेट किया है कि ये फॉरेन करेंसी में जो था तो कितना बर्डन कम किया जाएगा देखिए अभी तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा तो फिर उस पर ये सारी कैलकुलेशंस होंगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बट डेफिनेटली वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गारंटीज दैट हैव बीन इशूड. जी अच्छा मैडम ये जो ये आपने SECP की रेगुलेशंस बनी थी ना ये 2013 में बनी इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस टाइम से और जहाँ पे इम्प्लीमेंट को करने की कोशिश की गई वहाँ पे बोर्ड्स ने जब उनके पास पावर आई तो उन्होंने अपनी मर्जी से CEOs लगाए अपनी मर्जी से सैलरीज लगाई सुई के जो MDs हैं वो 1-1 करोड़ रुपया सैलरी दे रही और सारे स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ा दी गई और जो बोर्ड्स हैं अभी एक रिसेंटली एक केस आया NTDC में बोर्ड ने अपने एक बंदे को MD लगा दिया NTDC में और उन्होंने वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ाई और उन्होंने ठेकों में भी अपनी मनमानी शुरू कर दी. तो ये जो आप ये पावर देना चाह
प्राइवेट सेक्टर आके ज़्यादा बड़ा माफिया बन जाता है गवर्नमेंट एंटिटीज में। जी आप भी प्लीज़ क्वेश्चन दे दें पहले। जो आपने बात की है स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी कमेटी डिसाइड करेगी स्ट्रेटेजिक कौन सी एसओई है, नॉन स्ट्रेटेजिक है? दूसरा, अभी भी कई इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सेक्रेटरीज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और सीईओज भी हैं, जिस तरह पीटीवी कॉर्पोरेशन है, सेक्रेटरीज को वहाँ पे एमडी लगा दिया गया और चेयरमैन भी होंगे। और भी कई इदारे हैं जहाँ पर रास्त इंटरवेंशन है, सेक्रेटरीज बैठे हैं हर जगह पे, या जेस बैठे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, और सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये दो, एक तो स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक, कौन डिसाइड करेगा कि कौन से इदारे स्ट्रेटेजिक है, कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक है? क्योंकि माजी में ये हुआ है कि बाद इदारों को सिर्फ एक लाइन कह दिया तो स्ट्रेटेजिक है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। जी टेक मोर क्वेश्चंस फर्स्ट। हाँ, थोड़ा एक और ले लेते हैं ना। चलें, ये 3 यहाँ से ले लेते हैं। ये बता दें फिर इम्पोर्टेंट है, फिर रह जाए, फिर रहेंगे। नहीं रहेंगे, लिखा हुआ है। लिस्ट डाउन सर, करेंगे। ये बताइएगा कि जो इन इदारों की बहुत सारे इदारे हैं जिनमें हमेशा जब उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ यूनियन या लेबर यूनियन जो है वो बहुत बड़ा इशू है। हार्डल क्रिएट करती हैं। तो जब आप इनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखा है कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा अगर उनको शार्ट उनको निकालना है इन इदारों से, बाद एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, उनका प्लान क्या होगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप भी बता दें। दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो पीआईए की बर्निंग इस वक्त इशू पीआईए, बाकी कोई चीज़ें ऑन एंड ऑफ आपकी चल रही हैं। पीआईए में अब बात हो रही है उसकी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, उसके ऊपर आपका अपना क्या व्यू, और ये अगर ये करेंगे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग तो क्या उसका स्टेटस होगा? क्योंकि विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने आपसे कहा 13 बिलियन बिजनेस एज यूजुअल रखी, उनकी मंथली उनकी न्यूज़ है। सेकेंडली अगेन वो एक नेशनलिज्म का और एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उसके किस्म के वो जज्बाती नारे लगवा के आपसे हमेशा पैसे ले जाते हैं। वुड यू ट्रीट द पीआईए एज जस्ट अ पीआईए, एनी कंपनी अंडर रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड यू विल नॉट गिव money to the PIE, or again you will come under some pressure? I know you would not, but will you come under some pressure and give money to PIE which it is demanding right now? Thank you very much. Thank you, जी. Okay, now let's take the questions. Let me first, since I've spoken a lot, पहले अगर आप कुछ दे दें और फिर मैं I'll address the remaining. तो एक तो ये है 2013 के जो implementation का था, वो आप बता दें. You can answer any of these and then I'll amplify. रूल्स शायद फॉर द पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कह रहे थे, तो वो मैडम ने अपनी माइक ऑन कर मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि इस लॉ के आने के बाद और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट होने के बाद इन एसओईज के ऊपर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल इन्फोर्स नहीं होंगे, इस लॉ के तहत वो काम करेंगे और इस पॉलिसी के तहत। सो वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो CMU है वो असेस करेगा टू द कैबिनेट कमेटी और एक ओवरऑल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म इन प्लेस होगा जो कि माजी में नहीं था। दैट्स वन थिंग। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा Right. और दूसरा भी देना. दिस वाज द स्पेसिफिक क्वेश्चन। गारंटीज का भी आप बता दें ना थोड़ा और. जी गारंटी You have the information. उसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऐड कर रहे हैं कि गारंटीज का जो डेटा है वो अवेलेबल हो और उसमें क्लैरिटी हो, और वंस दिस इज इन प्लेस तो यू बी एबल टू ये एक्सेस तो दैट डेटा आल्सो। सो उसमें कोई ऐसा इबहम नहीं रहेगा। जैसे मैडम ने कहा कि गारंटीज का डेटा इस वक्त भी मौजूद है। आपने जो कहा कि वो सिर्फ फॉरेक्स की नहीं, वो हमारी रूपी की गारंटीज भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी हैं, लेकिन ओवरऑल उसका जी नहीं दोनों ही मैटर करते हैं हमारे लिए दोनों। थैंक यू। अच्छा, चलें अपने सारे क्वेश्चन में जब ये छोड़ दीजिए. अच्छा, okay. नहीं, you are also part and parcel of this and you have done phenomenal work. मेरा ये एक उसूल है कि जो काम करता है उसको लीडरशिप दी जाए. So पहला क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन पे. देखिए, the decision making on privatization has already been made. There is a list of privatization that is available with the Privatization Commission, and this question ought to be directed at the Privatization Commission. अब full time minister Privatization Commission के हैं और ये list has a political backing from the past और उसमें काफ़ी सारी organizations हैं और हमने जो legal mandate दिया गया था
इस गवर्नमेंट को, केयर टेकर को, उसमें ये कहा गया था कि वी कुड कंटिन्यू द प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, and some of those elements are covered under, as long as these are ongoing, active in the pipeline. तो ये काम शुरू हो चुका है from the day I was handling that portfolio. but आपको पता होगा कि privatization commission जो है हमेशा एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के पास होता था. इट वॉज नॉट विद द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिवीजन और मेरे जो 3 पोर्टफोलियोज़ हैं. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ प्राइवेटाइजेशन कमीशन फुल टाइम मिनिस्टर. और चूँकि आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ है, आप उनको भी सवाल कीजिएगा इसका. स्टेट गारंटीज़ are a reality, but there are limits on the state guarantees imposed by the IMF, and we are well within those guarantees. जो strategic versus non-strategic की decision कौन करेगा? देखें, वैसे तो if you pick up the list, you can make up your mind in a minute what is strategic and what's non-strategic. इसके लिए कोई magic solution नहीं है, but the matter of strategic and non-strategic proposal will be developed based on sound criteria by the State-Owned Enterprise Department of the Ministry of Finance in consultation with relevant ministries. It is not a fully empowered director, but इनका काम है teamwork with the ministries. और once वो हो जाएगा, then it will go to the cabinet subcommittee on SOEs. अच्छा, उसके बाद आपने ये PSQ का क्या कहा था? PSQ मैंने लिखा हुआ है, कोई किसी का सवाल मैंने भूल गई हूँ. PI का मैं बात मैडम वो था कि अभी भी कई SOEs हैं जिनके जो हेड्स हैं वो सेक्रेटरीज भी बने हुए हैं, चेयरमैन भी हैं, CEO भी हैं. देखिए, now this will all be under review, but you need to understand when government has a shareholding or the concerned ministry is in charge of that SOE, तो in accordance with the shareholding of कुछ ऐसी ministries, कुछ ऐसी SOEs होंगी जो बहुत heavily owned है by the government, in which case तो predominantly उसमें representatives of the government होंगे. but मैंने देखा है उसमें फिर भी independent members हम डाल देते हैं, because SECP की भी requirement है to have independent members now. लेकिन then there are others that, like I can tell you, few companies have 50% or 53%, some companies have 75%. तो बाकी जो 25% या तो वो प्राइवेट हैंड्स में होती हैं जिनके प्रॉक्सी वोट लिए जाते हैं, और उसके हिसाब से वो जो प्रॉक्सी वोट्स लेकर आते हैं तो उनकी अगर प्रॉक्सी वोट्स एडिक्वेट हैं तो वो उनकी सीट हो जाती है इन द बोर्ड. जिनके शेयर होल्डिंग इज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है, फॉर इंस्टेंस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, तो फिर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के अपॉइंटी होते हैं उसमें. तो इस तरह अभी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह चल रहा है. Now obviously this will come under examination of the cabinet subcommittee. There will be debate on this matter in the next, and that is why हमने कहा कि एक और मीटिंग initially launching approval से पहले state owned enterprise की जो policy हमने ड्राफ्ट की है उसको एक दफ़ा और उसकी implementation की चीज़ों को थोड़ा हम और फिक्स करें. And maybe there would be need for further amendments which has been discussed. Now we can list out all those amendments and make sure that in future those amendments will be incorporated by the political governments. Now you asked me a question about the PIA. I think it would not be appropriate for me to comment on PIA. Of course, the period that I was looking at, PIA is of course a flagship carrier of Pakistan, but the bottom line is it has had phenomenal losses, and yet it has to do this providing the service on ground, and there has been a very good discussion of
with the privatization minister of what my findings were, and he has all that information. Privatization secretary साहब वही हैं जो मेरे साथ काम कर रहे थे. So privatization minister should be the appropriate person to now tell you what the current mindset उनका क्या है. देखिए हमारी determination as a cabinet ये होगी कि जिसको हम प्राइवेटाइज कर सकें फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन तो हम कर दें. और उसमें अगर प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मिनिस्टर को कोई मदद फाइनेंस मिनिस्ट्री से चाहिए होगी तो आई एम अवेलेबल एट हिज सर्विस. He knows this very well. We've had 2-3 hours of discussion between us. We will work in partnership. हम अभी रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं ना इस वक्त. अब उसकी देखिए अभी तो हमें उनके वो तो एनालिसिस इज़ अवेलेबल. पहले तो डिसीजन होगा और वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन मिनिस्टर हमें बताएंगे कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है. अभी हमने डेफिनेटली वी डिड एक्सटेंड द commercial bank loan support to the to the PIA. तो हम support तो देंगे because it's a state-owned company, 92% owned by the government, federal government. तो we have to give support. But अब जो है ना सारे फैसले मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन करेंगे और हम उनके साथ सपोर्टिव रोल में होंगे और हम बड़े ट्रांसपेरेंटली उनके साथ काम करेंगे. ही नोज़ दैट. And we have discussed the areas where we need to support him. तो वो जब हमें बताएंगे कितना डेट को रिस्ट्रक्चर करना है, किस तरह करना है. देखिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग इतना अच्छा आसान काम नहीं है. अगर होता तो ये बहुत पहले हो जाता. बट आप कम से कम ये अप्रिशिएट करें कि एक जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जो सालों से जो मसले सॉल्व नहीं हुए उसको एटलीस्ट फॉरवर्ड लेके चलेगी ये. ठीक है. आई हैव टू गो. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए एक तो पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन की प्रोविज़न है इसमें. सो दे विल बी मोर डिटेल्स बेस्ड ऑन द पॉलिसी पेपर जो आपको आप वेब पे देख लीजिएगा. उसमें सारी डिटेल्स हैं. तो पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस वर नेवर केयरफुली आइडेंटिफाइड और उसकी कॉस्टिंग नहीं की जाती थी. तो अब चूँकि ये हमने इसमें पॉलिसी में है तो पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस की कॉस्टिंग की जाएगी और उसमें दी वर्कर्स की भी कॉस्टिंग होगी कि जब अगर आप किसी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो मेकिंग द ड्यू पेमेंट्स करनी पड़ेंगी और वो तो नेचुरल होता है सेटलमेंट ऑफ द अरियर्स और वॉट एवर देयर इज़. तो ये कोई ब्लैंकेट चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी. बट ये मैं आपको बता सकती हूँ जो इदारा प्राइवेटाइज होता है वो निगोशिएट करता है वर्कर्स के साथ और फिर अगर उसका बिल होता है तो वी somehow we have to pay for it. अब हम पाकिस्तान स्टील मिल की सैलरीज पे कर रहे हैं. अभी ECC कल ही हुई थी ना ECC जिसमें वी अप्रूव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू पे फॉर. देखें जी प्लीज़. कहाँ से क्या? दुनिया टीवी. अच्छा अब दुनिया को कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं? आपने जो जिक्र किया है 10 बड़े एसओईज का जो लॉस मेकिंग है तो काइंडली ये बता दें कि ये कौन-कौन सी हैं और ये लिस्ट नहीं वो तो अभी कंपाइल हो रहा है ना. द कंपनीज हैव टू गिव. बट मैं 2020 का डेटा इनको कहती हूँ आपको सर्कुलेट कर दें. सर बता रहे थे कि पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन का सर क्राइटेरिया क्या होगा क्योंकि इससे पहले भी ये पॉलिसीज़ बनती रही हैं और इसी तरह ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन का देखा गया कि बड़ा फरिया रहा है ना. तो अब क्या क्राइटेरिया होगा? अभी आप जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान स्टील मिल्स को जो 10 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है मैं इसको आप क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ करने की कोशिश की गई है बाय आवर प्रीडिसेसर्स और काफ़ी काम हुआ है. बट ऑब्वियसली यू नीड अ बायर फॉर दैट. ये भी आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन से बात कीजिएगा बिकॉज ये उनके परव्यू में आता है. हाँ ये दे देंगे. बाकी सारे वेबसाइट पे हैं. ये मेरे स्क्रिबल्ड नोट्स हैं. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू.